Shri Gurveer Singh Chauhan, ATM Safety from NTPC Gadewara Super Thermal Power Project. Please sir, join us on the stage. NTPC Gadewara, that's a basically coal-based power plant in the center of India and one of the major contributors in the field of electricity generation. Please welcome Mr. Gurveer Singh Chauhan. Hello, good afternoon to all of you. Mr. Gurveer Singh Chauhan, ATM Safety, NTPC Gadewara. I have 32 years experience in power plant generation, 28 years in power generation, and 3+ years in safety department. I want to share in detail how can we achieve safety in bottom level. Hello, audio. NTPC, India's largest power producer in power system. वर्ल्ड में थर्ड लेवल पर है. We are generating 69,000+ megawatt, 23 coal-based thermal plant. My earlier friend Bhagel from Jeep project, he said that we are doing different type of activity like metal handling, metal lifting, height job, construction activities, many activities in all industry we are used. First of all, I want to share how can achieve zero accident or zero incident in any industry. Our policy just I share some information about our plant NTPC Gadewara. Our NTPC Gadewara plant is into 2 units. India more latest time India में 800 मेगावाट की यूनिट है मैक्सिमम कैपेसिटी का. तो गढ़वारा में 2 यूनिट है 800 मेगावाट का. Our safety policy. Statement of intent: safety is a part of our core values. Therefore, safety shall be at the forefront of all our activities. We recognize all accidents are preventable. Our job, construction, operation, such type of activities, there are a lot of manpower coming from different areas. Some new person, some old person. New persons create more risk for an industry because they have no idea of safety. So we start first of all medical, then safety induction training. We have 22 safety module video film in different areas like height job, excavation work, metal handling, metal lifting, housekeeping, confined space, such type of many activities in all industries we are using normally. Our main focus, we recognize all accidents are preventable. In thermal plant, height job like chimney height 275 meters, present day 800 megawatt unit, earlier day 200 meters approximately. We achieve zero fatal accident in last 4 years. While 3,000 pupils daily entry in our workplace, and this is achieved only by some controlling factors. We discuss next slide. Safety framework. Safety framework is just like a software part. We use safety app. In safety app, different type of activities like confined space, unsafe act, safety deviation. We take snapshot and load online by mobile. And this snapshot reach directly SAP system. And after that, permit system. In NTPC, there is a PTW system, permit to work system. Different type of permit
and different job like height job, we use work at height permit, confined space. Different type of activities have different type of safety, job specific safety. So such type of activity in safety framework already included. Deviation and discussion for corrective action in the daily planning meeting. In our practice, daily DPM, daily planning meeting, 11:50 by start होती है, 1 घंटा मिल चलता है. We start our daily planning meeting with safety and environment, then other activity like maintenance, operation, such type of activities. Senior executives surprisingly to the location. Safety is incomplete without site visit, because our unskilled manpower is unaware about safety. But our target is zero accident. Deployment of safety steward at various work locations. Safety steward already by that person, BTech plus safety degree. Mock drills normally 4 hours. I want to share one example about this mock drill regarding. If you are comfortable in Hindi, I can explain. Sure. Yes, sir. मोक ड्रिल हमारा मेनली हमारी अलर्टनेस को बता रहा है कि हम कितने अलर्ट हैं. मैं एक इंसिडेंट फेस किया था अभी 2 साल पहले. रात में 1:30 बजे हमारे प्लांट में जो पावर प्लांट है उसमें क्लोरीन गैस यूज करते हैं हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में. पावर प्लांट में वाटर का बहुत ज़्यादा यूज है. रात में 1:30 बजे हमारा क्लोरीन का एक टॉनर है, उसमें लीकेज शुरू हो गई. और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आता है. हम लोग विदिन 5 to 6 मिनट रात में 1:30 बजे फोन, जैसी फोन आया तुरंत एकदम तो टाइम हमने कंट्रोल कर लिया. तो मॉक ड्रिल से हमें ये पता चलता है मेनली कि हमारी अलर्टनेस क्या है. तो इन एक्चुअल केस में जब कोई फायर होगा तो हमें उससे पता चलेगा कि हमारा क्या लेकुना है, हम किस पार्ट पे लूज कर रहे हैं. जैसे एम्बुलेंस अक्सर लेट पहुँचता है. अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सब काम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होने की वजह से जो अभी लोग हैं थोड़ा अवेयरनेस कम है सिस्टम की, कम एजुकेशन होने की वजह से, इसलिए थोड़ा डिले हो जा रहा है. तो उस पार्ट को हम लोग देख ले रहे हैं. तो हम वो ये जो इंसिडेंट था एक क्लोरीन गैस लीकेज का, हमने टाइमली उसको हैंडल किया. इससे पहले हम कई ऐसे मॉड्यूल किए हैं जिससे हमें ये कुछ मालूम हुआ है कि हम लोगों ने क्या क्या और करना है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कोई भी इंसिडेंट हो, अगर इंफॉर्मेशन फास्टली कम्युनिकेट होगा तो हम उसे टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आता है, मैं इंडस्ट्री में देखा हूँ 32 ईयर्स में अपने, कि हम लोग पहले कोशिश करते हैं खुद ही कंट्रोल करेंगे और फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, फिर वो कंट्रोल में नहीं आता. ऐसे एनटीपीसी में मैं बहुत सारे इंसिडेंट देखा हूँ, सुना हूँ इसके बारे में. तो सबसे पहले टॉप आदमी को बताना है, जैसे फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट सबसे उसको बताना है ताकि वो पैरेलल एक्टिविटी कर सके. तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, ऐसा कुछ टॉपिक आएगा. फर्स्ट एड सेंटर इज द प्लान. कुछ भी होता है तो फर्स्ट एड सेंटर में हम लोग आदमी भेज ही रहे हैं. डेली टीबीटी पेप्टो, ईबीटी एंड पेप्टो दोनों सेफ्टी डिस्कशन है. TBT toolbox to particular job related. If any job like confined space, first of all we share about oxygen level. Chemistry department measure oxygen level. If oxygen level is sufficient, then we are allowed to work. Otherwise, we use extra some means like exhaust fan, fresh air to control oxygen level in confined space. एक एग्जाम्पल ऐसी शेयर करता हूँ. अक्सर जो हमारे सिटी में कहीं भी लोग बहुत सारे
सीवर लाइन में जो लोग कुछ लोग एक्सीडेंट होते हैं, उसका कारण यही है कि एक जगह क्लीन वाटर में काम करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल क्या होगा। वो उसी के दिमाग में इमेज रहती है कि कन्फाइंड स्पेस सब जगह ऐसे होते हैं, और कहीं कुछ सीवर लाइन में घुसते हैं तो पता चलता है कि वहाँ उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था और आदमी दम घुटने पड़ जाता है। तो हमारी इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री बात करें इसकी पावर प्लांट की, कन्फाइंड स्पेस की जो बहुत सारे हैं, तो हम लोग मेनली ऑक्सीजन लेवल सबसे पहले मेजर करते हैं। सफिशिएंट है तो ठीक है। अगले आई वाज इन बदरपुर प्लांट, यहाँ पे कंडेंसर में बहुत गंदा पानी आता दिल्ली का, बहुत पटनी साफ करना पड़ता था। तो उसमें कंडेंसर के अंदर ट्यूबें बहुत सारी है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते थे ताकि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाए। उसके बाद ही आदमी को अलाउ करने के लिए। तो टीबीटी जो स्पेसिफिक, अगर कोई आदमी कोल मिल में काम करेगा तो उसके पास उसकी पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन टीबीटी में हम लोग काम शुरू करने से पहले बताते हैं। वो टीबीटी वाला पार्ट है, पेपर तो जनरल पार्ट है, लेकिन टीबीटी जो स्पेसिफिक पार्ट है इसे हम लोग हर जॉब पे कर रहे हैं। तभी हम ये अपना टारगेट, इतना बड़ा प्लांट खड़ा करना, 40,000 मीट्रिक क्यूब कंक्रीट वाला पार्ट हमने एफटीडी में कंप्लीट किया है। 98% सीमेंट कंक्रीट काम हो गया। ये तभी पॉसिबल है हमारी जब इतनी वर्कफोर्स हर जॉब को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट एरिया काम चालू हो गया। बहुत सारा, सबसे बड़ा रिस्क है कंस्ट्रक्शन की जो मैन पावर है, कम पढ़ी लिखी है, कम एजुकेशन है, कम एक्सपीरियंस है। कंस्ट्रक्शन टाइम में एक्सीडेंट का चांस बहुत ज़्यादा है। इसको तभी रोका जा सकता है जब हम जो इस सेफ्टी के जानकार लोग हैं वो उसको क्लोजली वॉच करें, कंट्रोल करें और स्टॉप करें। काम अगर लग रहा है अनसेफ काम हो रहा है तो उसको रोकने का। ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। Our transport safety department 22 module, housekeeping, work at height, excavation, such type of 22 module we are using training center. इन मॉड्यूल को हम जो हमारा जो स्पेसिफिक पार्ट है उसमें कवर करते हैं। नॉर्मली हम इंडक्शन ट्रेनिंग वाला पार्ट सबसे नीचे आ रहा है उसको कवर करते हैं। तो जनरल सेफ्टी की बात करते हैं हम लोग। सेफ्टी प्रैक्टिस हमारी क्या है? पीरियडिक हेल्थ चेकअप ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉइज। सभी लोगों का, एम्प्लॉइज का, वर्कर का मेडिकल चेकअप हो रहा है। पहला चेकअप जब फर्स्ट टाइम होता है इंडक्शन, सबसे पहले मेडिकल होगा, फिजिकली फिट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग सेफ्टी का होगा, उसके बाद वो बंदा काम पर लौट कर जाता है। उसको वाला पार्ट है। बाकी हर ईयर सभी का ईयर मेडिकल चेकअप हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीरा JSA PLO system for all job, hazard identification, risk analysis, हीरा, और जॉब सेफ्टी एनालिसिस PLO सिस्टम। इसमें हमारा PLO सिस्टम 6 to 7 टाइप PLO सिस्टम है। परमिट टू वर्क नॉर्मली सिस्टम बोल रहे हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कोई परमिट जाएगा, उसमें स्पेशल ला पार्ट बहुत केयरफुली देखने का है। अक्सर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक, ये मेन रीजन ये है कि हम लोग उस सिस्टम को पूरा पढ़ते नहीं है, पेपर को भी नहीं पढ़ते। ऊपर से एक कॉपी आप चलो सिस्टम का आगे वालों को दे दिया, उससे आगे वालों दे दिया, काम चालू कर। इसको हम तभी रोक पा रहे हैं कि उसको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल पे जाएगा। हम सीनियर लेवल का आदमी, AGM लेवल, GM लेवल आदमी जाकर रैंडमली चेक कर रहा है साइट पे जाकर कि ये मिल अंडर परमिट है क्या, वास्तव में इसमें सारी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट फुलफिल किया गया। परमिट सिस्टम ठीक है, अगर कन्फाइंड स्पेस का काम कर रहा मिल के अंदर घुस रहा है तो उसके बाद कन्फाइंड स्पेस का परमिट है कि नहीं है, ऑक्सीजन लेवल मेजर किया गया कि नहीं किया गया, इनका टीबीटी हुआ कि नहीं हुआ, इस सब को कर रहा है। तभी हम लोग 0 एक्सीडेंट अचीव कर पा रहे हैं। CSF for work permit. Which part should I? Cross-functional team on weekly basis for living the confined space work at night. एक क्रॉस फंक्शनल टीम है,
एक डिपार्टमेंट काम करता है, सपोज को मैकेनिकल को काम करना है, दूसरे डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, प्रोफेशनल टीम में 2 आदमी है, एग्जीक्यूटिव सीनियर लेवल का रहता है। इसमें वो देखते हैं कि सब एक्टिव ठीक है, जीएस से है कि नहीं है, परमिट सही है कि नहीं है, ये वो काम किया उसी का परमिट है कि नहीं है, हीरा है कि नहीं है, सब चेक करने लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट टीम है, तो जो ऊपर जाकर चेक करता है। CSF हॉट वर्क परमिट, कोई भी हॉट वर्क का काम होगा तो CSF उसमें जाके देखेगा कि सब ठीक ठाक रहेगी। नॉर्मली इंडस्ट्री में फायर से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम बात करते हैं मैन मेटल और मशीन को हमें सेव करना है। अभी कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ है, शायद हमारे बघेल साहब जानते होंगे, लेकिन प्लांट में एक्सीडेंट हुआ है, FGD फ्लू गैस डिसोनेशन प्लांट में। एक चिमनी में काम चल रहा था वेल्डिंग का, और नीचे एक ऐसा मेटेरियल लगा था उसमें, पॉली सिलिकॉन कुछ करके है, कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फायर हो जाता है। तो हम लोगों ने अपने इस प्लांट में हमने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया है कि हमने उस मटेरियल को लास्ट में लगाएंगे, पहले उसके ऊपर का जो वेल्डिंग वाला कंप्लीट कर लेंगे। ये कुछ स्ट्रेटजी हमारी हट गया बाकी प्लांट से। ये एक्चुअली सारे प्लांट में लगना, लेकिन हमारे प्लांट में भी लग रहा है। हमने कुछ चेंज किया अपने आप से इसको, कि हम उसको लास्ट में लगाएंगे, पहले ऊपर वेल्डिंग का काम हो जाए, ताकि वेल्डिंग स्पीटर गिरने से वो मटेरियल फायर ना हो जाए। और वो चिमनी के एब्जॉर्बर टाइप का अंदर लगता है मटेरियल, कन्फाइंड स्पेस का जॉब है। अगर वहाँ पे फायर हुआ तो आदमी कोई निकल नहीं पाएगा, और मटेरियल कॉस्टली भी है, इम्पोर्टेड मटेरियल चाइना से आता है। तो मैन मटेरियल और मशीन जब हम बात करें सेफ्टी डिपार्टमेंट में, तो तीनों को बचाने के लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस अपना रहे हैं कि हम उस मटेरियल को लास्ट में लगाएंगे, पहले ऊपर काम कंप्लीट करेंगे, ताकि अगर इंस्पेक्टर तो गिरेगा ही, उससे फिर हम सेव कर सकें। इस टाइप का स्ट्रेटजी हम लोग करना पड़ा है, जिससे हम लोग अपना टारगेट सेफ्टी का अचीव कर पा रहे हैं। सेफ्टी डेविएशन बाय एम्प्लॉइज, कुछ एम्प्लॉय सेफ्टी डेविएशन, जैसे सेफ्टी फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, एक हमारा सेफ्टी ऐप है, सबके मोबाइल में मोस्टली लोड है, फोटो खींचते हैं, इसमें डाल देते हैं, उसके बाद वो रिलेवेंट पर्सन के पास जाता है, वो देखता है उसको ठीक करना क्या करना है। नियर मिस रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, नियर मिस पे आजकल हमारा बहुत फोकस है। हम सेफ्टी में को 2 एंगल से देखते हैं, एक लैग इंडिकेटर, एक लीड इंडिकेटर। लैग वाला जो इंसिडेंट हो जा रहा है, वो लीड वाला जो होने से पहले हम देखें। हमारा ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है वो लीड इंडिकेटर है। जैसे हम किसी भी वर्कर का पहले ट्रेनिंग करते हैं, वो लीड पार्ट है, ताकि उसको सेफ्टी के बारे में कुछ बता सके। कोई नया बंदा आ रहा है, उसकी इतनी जानकारी नहीं है, हम लोग इतने एक्सपर्ट्स वाले हैं, किस किस टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है उससे शेयर कर सकते, वो वाला पार्ट है। लेग वाला इंडिकेटर वो है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, सपोज करो कहीं फैटल एक्सीडेंट हो गया, वो वाला पार्ट है। हम दोनों एंगल से उसकी स्टडी करते हैं, अपनी जो भी हमारी एनटीपीसी को हो रहा है उसका। नियर मिस हमारे लिए एक फ्री लर्निंग है। कहीं कोई घटना घटी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, हमने उसको अपने प्लांट में शेयर करते हैं, और ये देखते हैं कि इसमें हम इससे कैसे अपने प्लांट बचा सकते हैं। जैसे मैं भी हाल के केस शेयर करता हूँ आप लोगों से। नॉर्मली लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ताकि हम शेयर नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे कैसे, अपने आप को सेव करेंगे इससे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लास्ट मंथ में इंसिडेंट हुआ था। एक कंक्रीट मिक्सर है, कंक्रीट मिक्सर में हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं कई सारे। एक ड्रम टाइप का होता है जिसको हंडी बोलते हैं रफ लैंग्वेज में। एक ड्राइवर उसका 8 बजे सुबह आया और उसने उस कंक्रीट मिक्सर को हाइड्रोलिक सिस्टम लिफ्ट किया। उसके पीछे से एक मार्जिन होता है थोड़ा सा, वो उसमें कुछ काम करने घुसा, बाई चांस वो हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और वो बंदा उसमें दब के एक्सपायर हो गया। ये अभी कुछ दिन पहले का फैक्ट एक्सीडेंट। ऐसा प्रैक्टिकल होता है। मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैंने अपनी गाड़ी में देखा, जब हम डिग्गी को ऊपर उठाते हैं उसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगी होती छोटा सा, कई बार वो भी कुछ टाइम के बाद बाइक उसकी एक्सपायर होने के बाद काम करना बंद कर देती है, और डिग्गी आप खोले पता चला डिग्गी ऊपर से गिर जाती है। तो हमारा कहना ये है, जो भी रिस्क है उसकी कल्पना करो, इसमें क्या रिस्क हो सकता है।
जब तक हम रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। इन द सेम वे हम हमने उसमें लोग अभी नेक्स्ट स्टेप आ रहा है शेयरिंग सेरेमनी। शेयरिंग सेरेमनी क्या है? अभी आजकल जो भी इंसिडेंट हो रहा है हम उसको शेयर कर रहे हैं सबके साथ, स्पेशली उससे रिलेवेंट जॉब जिसका है। जहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स मिक्सर यूज हो रहा है वहाँ हमने लोगों को वर्करों को इकट्ठा किया, उनको ये इंसिडेंट शेयर किया, और इस ये घटना रिपीट ना हो ऐसा इंसिडेंट, उसके लिए क्या करना है। तो हमने उसे शेयर किया कि बीच में कुछ ऐसा मैकेनिकल जैसे लकड़ी और गुटका लगाओ ताकि हाइड्रो सिस्टम फेल हो जाए तो वो हंडी नीचे ना आ सके। ये जो हाइड्रो सिस्टम है ये उठाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर चाहिए, लेकिन जब नीचे आ सकता है बिना इंजन ऑन हुए। इस टाइप का हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं शेयरिंग सेरेमनी में। अवेयरनेस टू सेफ्टी वीक, डिफरेंट टाइप सेफ्टी वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, मानसून सेफ्टी, हाउस कीपिंग सेफ्टी, रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी का प्लांट के अंदर बहुत बड़ा रिस्क है। हम लोग इसके लिए क्लोज मॉनिटरिंग के लिए हमने अपने प्लांट के अंदर स्पीड मॉनिटरिंग कैमरा लगा रहे हैं। उसमें फोटो, गाड़ी का नंबर सब आता है, कितने बजे इस आदमी ने रोड सेफ्टी रूल वायलेशन किया है। उसके बाद फिर करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। जर्नी ऑफ एनटीपीसी गढ़वारा सेफ्टी इंजेक्शन ट्रेनिंग सबसे पहले हम कर रहे हैं। पहले एक संजीवनी फर्स्ट एड सेंटर था जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर था, उसको हम फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट के लिए पब्लिश मेरी सुरक्षा पुस्तिका हमने पब्लिश कराई थी ताकि सब लोग थोड़ा सुरक्षा के बारे में बता सके। पीपीटीएन पे टॉप इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। इंटरनल सेफ्टी ऑडिट में हमारा एनटीपीसी एक प्लांट और दूसरे प्लांट से कुछ सेफ्टी के लोग आते हैं, वो ऑडिट करते हैं। दो पार्ट में चेकिंग होता है, एक स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट जैसे फैक्ट्री लाइसेंस है, दूसरा अनसेफ डेविएशन, अनसेफ कट, अनसेफ कंडीशन की बात करते हैं। फायर टेंडर एंड मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट, मेडिकल चेकअप ऑफ वर्कर बिफोर एंगेजमेंट ऑफ वर्क, तो वही रहा हम लोग कर रहे हैं इसको। एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट सेफ्टी काउंसिल है, उससे हम लोग एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं। वो भी इंटरनल ऑडिट की स्टाइल में है, एक्स्ट्रा हम लोग कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ हेल्प कर रहा है, हम लोग को बताएगा। एंगेजमेंट ऑफ जैसे फायर हम लोग सीसीटीवी से भी अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे हमारा एफडी वाला एरिया है उसको सीसीटीवी लगा रखा है, हम वहाँ से ऑफिस से उसको वो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। 24 आवर हमारा बंदा सेफ्टी में है, कुछ भी कहीं कुछ एक्टिविटी उसको ऑब्जर्व कर रहा है। स्टार्टेड मॉक ड्रिल इन इंस्ट्रक्शन फेज, सर्टिफाइड एक्सटर्नल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे इसके फोल्डिंग का ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं। सेफ्टी जोन कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेड, अप्लाई फॉर सेफ्टी अवार्ड। सेफ्टी जोन अपने प्लांट को हमने 14 जोन में डिवाइड किया। उस जोन का एक जोन लीडर है, डिप्टी जोन लीडर है, वो भी एक महीने विजिट करता है। कहीं कुछ अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके बारे में वो डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं। रीजनल सेफ्टी ऑडिट स्टार्टेड ऑफ विद इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, इसकी बात हुई है, आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी जो सेफ्टी एंटी सेफ्टी प्लान, थीम बेस्ड सेलिब्रेशन ऑफ फोर्टनाइट एंड मंथ रोड सेफ्टी, इसकी बात हो गया। ये हमारा डिफरेंट एक्टिविटीज है, उसका फोटोग्राफ है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू।